ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ध्यानमूलं गुरौ मूर्ति पूजामूलं गुरौ पदम् मन्त्रमूलं गुरौ वाक्यं मोक्षमूलं गुरौ कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। तस्मै श्रीगुरुवै नमः। So today we have two sessions. The first one will be the yoga practice, and Chaitanya Anandji is with us from Dubai, and she will be conducting today's session. And then we have a guest lecture on the topic science behind Shuddhi Kriya. So without wasting more times, I will just invite Chaitanya Anandji to continue the today's session. Chaitanya Anandji. Hari Om. Please sit in a comfortable position, placing your palms on your knees into the Gyan Mudra. Head and back straight, eyes gently closed. Let the whole body to be relaxed, calm, comfortable. Let the mind to be completely relaxed. Gently and slowly bring your awareness to the breath. धीरे से अपनी चेतना को अपने श्वास और प्रश्वास पर लेकर आएंगे. Now from the breath, bring your awareness all the way to your eyebrow center. अब धीरे से अपनी चेतना को अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर आएंगे, अपनी भूमध्य के बीच. 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे. लंबा गहरा श्वास लेंगे. Shanti, Shanti, Shanti. Bring the palms in front of your heart region, bow the head down, all the way, and relax. सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर. दोनों पैरों को हल्का सा सेपरेट रखेंगे. Keep your both feet slightly apart. With the inhalation, raise the arms all the way up. With the exhalation, slowly and gently down. With the inhalation, आप श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और अपनी उंगलियों को देखेंगे. With the exhalation, श्वास छोड़ते हुए बैक को एक्सटेंड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे. जो लोग पूरी तरह से नीचे नहीं आ सकते हैं, they can bend their knees. Inhale, breathe in all the way up. And with the exhalation down. Inhale up. And exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And exhale all the way down. Inhale, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे. ताड़ासन में यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएंगे. With the inhalation, raise the both heels up. With the exhalation, palms on the head and heels down on the floor.
श्वास लेते हुए फिर से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale up, breathe in, and exhale, breathe out. As you breathe in, up, and as you breathe out, down. Breathe in, up, and breathe out. Breathe in, up, and hold. 1, 2, 3, 4, and 5. Exhale, drop the heels down and keep the both feet apart. दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेंगे और हाथों को एक्सटेंड करेंगे. नाउ एक्सटेंड योर आर्म्स, ब्रीथ इन. यहाँ से हम लोग कटी चक्रासन में जाएंगे. ट्विस्ट करेंगे बॉडी को. इनहेल एंड एक्सहेल बैक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलीज. दोनों पैरों को ध्यान रहे कंधों से हल्का सा ज्यादा खोलेंगे. Be aware that your both feet should be open, little more than the shoulders. As you inhale, extend the arms up. With the exhalation to your left, inhale to the center and exhale to the right. Inhale to the center and exhale to the left. श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे. श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale and hold. यहाँ हम होल्ड करेंगे. श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे और पूरी साइड ऑफ द बॉडी पर ध्यान देंगे. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Inhale to the center. Keep your arms strong, shoulders strong. And with the exhalation to your right or to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Inhale to the center. Again, we are going to twist the body in the Kati Chakrasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly relax to the center again. Now roll the shoulders. Deep breathe in while extending the chest and deep breathe out while bringing the arms down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up, exhale down. 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 Inhale up and relax. Palms on your waist and rotate from right to the left. Full rotation in a circle. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Release. अब पैरों को थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे मैट से. Now keep your both feet slightly more apart, more than the mat. With the inhalation, raising the arms up. With the exhalation, extend your back forward and drop your palms down. अब यहाँ से हम अपने बैक को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपने फिंगर से कप बनाते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे. Stay there. Deep inhalation and deep exhalation. अब धीरे धीरे बॉडी को आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे. 1, 2, move your body forward and back. 3, and while moving backward, become aware of the hamstring muscles. पीछे की तरफ मूव करते हुए अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स, अपने थाइस के पीछे की मसल्स को फील करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इनहेल करते हुए अपने बैक को एक्सटेंड करेंगे. नाउ ब्रिंग द लेफ्ट पाम बिटवीन द लेग्स. और यहाँ से अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी दृष्टि को अपने फिंगर्स पर रखेंगे. कीप द दृष्टि ऑन द फिंगर्स एंड स्टे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale, palms down and lift your left arm up. Hold. Deep inhalation and exhalation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale to the center again. Now be on the fingertips and extend your back forward. Look up. Deep breathe in and deep breathe out. Deep breathe in and deep breathe out. Inhale all the way up, up, up. Inhale all the way up and raise your arms up. Interlock your fingers and stretch your body to your left and then to the center and the right. To the center, to the left, to the center, to the right. Inhale to the center, exhale to the left. Inhale to the center, exhale to the right. Inhale to the center and exhale. Relax your arms and bring your legs together. Keep your arms, palms facing front and eyes closed. Just close your eyes for a few seconds and just feel the prana into the whole body, moving from up to down and down to up. आंखों को बंद कर लेंगे और अपने पूरे शरीर पर ध्यान को लेकर जाएंगे. प्राणों की मूवमेंट को फील करेंगे. Try to feel the energy of your body moving up and moving down, moving up and moving down. Gently, slowly move your fingers, open your eyes and bring your both feet together into the Samasthiti. यहाँ से हम ट्री पोज में जाएंगे. जो लोग नहीं जा सकते हैं, they can take the support of the wall. Bring the right foot by the side of the left thigh and palms in front of the heart center.
यहाँ पे हम अपने बॉडी को बैलेंस करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप यहाँ पर भी ऐसे रह सकते हैं या फिर आप अपने आर्म्स को, पाम्स को अपने चेस्ट के आसपास भी रख सकते हैं। यू कैन टेक द सपोर्ट विद द वॉल विद वन हैंड and balance your body in the tree pose. Stay there. Deep breathe in and deep breathe out. Focus and be aware. Focus. Drishti on one point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पैर को, अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाएंगे और टोस को नीचे की तरफ खींचेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर, श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale, relax. दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now bring the left foot by the side of your right and balance. You can take the support of the wall if you want. Then palms in front of the heart center. When you see that your body is balanced in first position, and then you raise the arm up, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale, arms down and directly bring your knee up and toes down, raising your arms. Hold. Stretch your arms, keep your arms active, thighs active, toes active. 1. But don't forget to breathe in and breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale down. Again, move your heels up and down. 1, 2, 3, 4, 5. Now bend the right knee and rotate. From the hip rotation, you have to move in a full circle to release the tension and the stiffness from the hip joint. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Now with the left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. Come in front of the mat. Take 1 foot distance and both feet together. Get ready for the Surya Namaskar. Palms in front of the heart center. लंबा गहरा श्वास लेंगे, ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे. Balance your breath. Normal the breath. Inhaling and exhaling completely. With the inhalation, raise your arms up to the Hastuttanasana. Exhale, extend the back all the way down. Take the right leg back. Drop the knee, look up. With the exhalation, take the left leg back into the Parvatasana down. Now drop the knees, chest and chin down.
Inhale, arch your back all the way up to the Bhujangasana. Exhale to the Parvatasana down. Bring your left leg forward. Drop the right knee down. Look up. Exhale, right leg forward. Inhale, raise your arms up. Exhale, palms in front of the heart center. Again, bring the palms in front of your heart center. दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और बैक को आर्च करेंगे. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे. Now take your left leg back. अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और नी को नीचे रख देंगे. With the exhalation, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे. एक्सेल करेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को और यहां से हम आएंगे अष्टांग नमस्कार में. इनहेल, श्वास लेते हुए भुजंगासना में और एक्सेल डाउन. With the inhalation, right leg forward, look up, exhale, left leg forward, inhale, raise the arms all the way up, palms in front of the heart center. Second round, inhale, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, exhale down. यहां से हम अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे. Right leg back. Drop your knees, chest and chin down. Ashtang Namaskar. श्वास लेते हुए भुजंगासना up. With the exhalation, Parvatasana, mountain pose down. श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे. Right leg forward. Drop your knees, chest and chin down. Oh, sorry. Inhale up, raise your arms up. Palms in front of the heart center. Round को complete करेंगे. Inhale up, raise your arms. Exhale, forward down. Take the left leg back, right leg back. Dropping your knees, chest and chin down. Inhale up. Exhale down. यहाँ hold करेंगे. श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Drop your knees down and relax in Shashankasana. Release. Drop your head all the way down and relax your body down on the floor. Deep breathe in and deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. As you inhale, bring your body all the way back into the cat and cow stretch. श्वास लेते हुए बैक को आर्च करेंगे. श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को पीछे की तरफ खींचेंगे. With the inhalation, arch your back, pull the chest up. With the exhalation, down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And exhale. Relax. Release. Sit with the cross-leg position on your mat and relax. दोनों पाम्स को अपने घुटने पर रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे. यहाँ पे लंबे और गहरे श्वास को महसूस करेंगे. Try to be aware of the deep breath in and deep breathe out through the nostrils.
श्वास लेते हुए you have to fill the maximum amount of air in your abdomen and make your abdomen more rising like a balloon. With the exhalation, relax. With the inhalation, expand your abdomen like a balloon. With the exhalation, relax. Inhale, expand your abdomen. And with the exhalation, relax. श्वास लेते हुए अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे. Keep breathing in, breathing out for few seconds. Completely be aware. Be focused. Be aware. अब अपने नॉर्मल श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देंगे. Now become aware of your normal inhalation and exhalation and bring the both palms in front of the heart center. We are going to chant one Om together to end the practice. Take a long deep breath in. लंबा गहरा श्वास लेंगे. शांति शांति शांति. Rub the palm and place it on the top of your eyes. Relax. Thank you very much. Hari Om Tat Sat. I request Roshan ji to please continue the session. Thanks a lot, Jyoti ji, for conducting the session very beautifully from Dubai. And now we have another. Your voice has gone, Roshan ji. Now, am I audible, Jyoti ji? Yes, now fine. Now fine. Yeah. Okay. Thank you so much. First of all, thank you so much, Jyoti ji, for conducting the session very beautifully. And let me say a few things. I want to say a few things. I want to quote Vikesh Iyengar ji here, that yoga doesn't change the way we see things, but it basically transforms the person who sees it. So, and today we have another session, and we have a very known yoga and naturopathy expert, an academician, a proficient yoga sadhika with us, respected Rachna Raj ma'am with us, and she will be taking the another lecture session today, and she will be speaking on the science behind Shuddhi Kriya. So now I just request respected ma'am to come and continue the lecture of today. Namaste Roshan ji, thank you so much. And namaste all. I'm very happy to see you all here, that you all are attending this wonderful session, 9 days sessions with us. And this, as you all know, that this whole program is based on detox. We are not designed this program for physical detox. The Guruji planned this program for holistic detox. So here I want to ask a question, that what do you think that what is health? If anybody want to answer me, or you can write in chat box. What is health according to you?
Okay, I will give you the answer. Maybe we think that if we don't have any disease, we think that we are healthy. Okay? Yes? No answer? You're not responding. Yeah, it is that also, but when we are able to do everything without any help, day-to-day work, Yes, get up early, yes, and yes. all the asanas, pranayam without any difficulty, that's called health, I think. Okay, okay, okay. Thank you so much for your response. Okay, Thank you. okay. So, what is health according to the WHO or yoga concept? Huh? So, health means that it's not physically you are healthy. It's a state where you're physically balanced, mentally balanced, socially and spiritually. If you are in a state of well-being, that is called a definition of health. Okay, so that's why we plan a program which is detoxify you from all these aspects that you balance in your physical state, your mental state, or spiritual or social state. Okay, so now the question is that why we get diseased? What happened? हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या होता है? Because we did not do we did not do a specific exercise. That's why. We don't Okay. have mental health. As in Because we we are don't mentally eat. weak, or maybe Yeah. something is not Yes, good. yes. Because our physical, mental, social, and spiritually, we have some imbalance is there. Okay, so that's why we get diseased. So today I will focus on basically on physical health. My topic is science behind the Shat Kriyas or Shuddhi detox. So I will more focus on physical health. Okay, when we practice this Shuddhi Kriya, purification processes, we get that mentally we are balanced and physically, mentally, emotionally, in pranic level also we get balanced. Okay, so what is the cause of disease? As I told you that there is some toxin in your body deposit. There is an accumulation of toxins. So what happened that we have हमें जो बॉडी है हमारी वो हम केवल फूड को इनटेक करते हैं और we have one organ to intake our food and we have 4 organs to eliminate the toxins. What are those organs? Number 1, our kidney, which remove that toxin through the urine. Okay, the second organ is your lungs. Through lungs you remove your toxin. Okay, and the third organ is your large intestine, through which how we remove that toxins in the form of stool. And the fourth organ is our skin. So through sweating we remove that toxins from that body, for our body. So it means that detoxification is important, more important than intake of food. Okay, sometime what happen कि आप जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी see there is a doctor inside you. Maybe you surprised that who is inside us, who take care us. Okay, there is a doctor inside you. Maybe we don't know that who is that doctor. It's a prana shakti, you can say. Prana helps you to cure you. Okay, so क्या होता है कि जब आप आपकी बॉडी में कभी भी बहुत ज्यादा देखिए हम डेली डिटॉक्स हमारी बॉडी करती है. मैंने आपको बताया कि 4 ऑर्गन्स हैं इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए.
पर इसके अलावा अगर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, इफ योर ऑर्गन्स, ऑल दीज ऑर्गन्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट व्हाट हैपन कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ बॉडी को जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, जो वो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए। तो कभी कभी हमें क्या होता है, वी हैव फीवर, वी हैव डायरिया, डिसेंट्री, ओके, वी हैव कोल्ड एंड कफ, we have vomit also. So these are not the diseases, okay. Once if you have this type of symptoms, you identify that your body have excess amount of toxins and it uh, remove through this process. So what I said that fever और आपका जब कोल्ड एंड कफ होता है थ्रू म्यूकस, कफ की जब क्वांटिटी आप बहुत बढ़ जाती है, और जब आपको वोमिट आती है या डिसेंट्री हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, तब इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तो जब भी आपकी बॉडी इन सिम्टम्स के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, तो हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी हमें लूज मोशन होता है, व्हाट वी डू, वी टेक मेडिसिन, ओके, वी मतलब हम अपने शरीर के अपोज में काम करते हैं, जबकि हमें अपने शरीर के साथ होकर के उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स को रिमूव करना चाहती है, वो आपको हेल्दी बनाना चाहती है। बट हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, और इस तरह की चीजें जब होती हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं स्टॉप कर देते हैं मेडिकेशन के थ्रू। जब भी आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है कि वॉमिटिंग आ रही है, इट मीन्स, मैंने जैसे अभी बताया कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप कोई भी फूड मत लीजिए। आप इस कंडीशन में यू कैन ड्रिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और इफ यू कैन वॉमिट आउट, इस अगर आप वॉमिट खुद से पानी पी करके कर लेते, क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स को निकालना चाह रही है, और आप ऐसे में अगर पानी पी करके खुद से निकाल देते हैं, आप बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू, ओके। लाइक जब भी आपको डिसेंट्री होती है तो आप एनीमा ले सकते हैं। एनीमा मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसमें क्या होता है, हम लार्ज इंटेस्टाइन को उसमें क्लीन करते हैं, ओके। ये भी आप अपनी बॉडी को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। जब भी कोल्ड एंड कफ होता है, तो नॉर्मली हम लोग कोल्ड एंड कफ में बहुत परेशान हो जाते हैं, हम लोग जो है मेडिकेशन ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप इस तरह के टॉक्सिन्स जो अभी बॉडी जिसको निकालना चाह रही है, जब आप उनको बाहर नहीं जाने देते हैं और आप इनको मेडिसिन के थ्रू बॉडी में ही रोक देते हैं, तो ये जो एक्यूट डिजीजेस थी, दे इट कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक डिजीज। तब आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो किडनी है उसमें टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाता है, देन व्हाट हैपन, इन सिंपल वे, आपको किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लंग्स में म्यूकस जो है वो जो टॉक्सिन के फॉर्म में डिपॉजिट, अगर लंग्स में कोई भी टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाता है तो आपको अस्थमा हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई भी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जब भी आपके टॉक्सिन डिपॉजिट होंगे तब आपको कंस्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमें पता है कि जब भी टॉक्सिन्स होते हैं तो ये सिम्टम्स, आपकी स्किन में कोई भी टॉक्सिन या ब्लड में कोई भी टॉक्सिन डिपॉजिट होता है तो आपको आपकी स्किन में एक्ने हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स है जहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि बॉडी में अब टॉक्सिन्स आ गए और हम कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को पता है कि कैसे सिस्टम को, आपके सिस्टम को हेल्दी बना के रखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी स्लाइड में आपके साथ शेयर करती हूँ। रोशन जी, स्लाइड कैसे शेयर करेंगे? रोशन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो।
How to share my slide, Roshan ji? The one. Roshan ji, can you hear me? Ma'am, there is a share screen button, no? If you are an host, then only you can do it. She's a host. You can share. Hello. Ma'am, can you? Yeah, I can hear you, ma'am. मैम शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा एक मिनट शेयर स्क्रीन यू आर द co-host, you can share your screen. How can I connect through my mail? Okay. Is it visible to all of you? Not yet. मोबाइल में तो ग्रीन कलर का आइकन आता है, शेयर एरो बना हुआ है उसमें, लैपटॉप पे आई डोंट नो. Roshan ji, I'm sharing my PPT with you. Okay, okay. God. Should I share in Ritanvishi mail now? Simply send me on WhatsApp if it is possible and just continue and I will share the PPT from my side. Okay. Okay. Let me share. I will share. रोशन जी देखिए, आपको मैंने शेयर किया है. Okay. You just continue, ma'am. I will take just 30 seconds to 1 minute to show you. Okay, sure. Okay. So, यहाँ तक आपको कुछ क्वेश्चन अगर करना है तो आप पूछ लीजिए. If you have any question, you can ask. Till now. Okay. Ma'am, when you get cough and cold, how do you support that? What you have? You just drink hot water. Just. It's very simple. Just drink hot water. Or you can do Jal Neti or Sutra Neti. Okay. And take maximum liquid, hot liquid, something soup and very easily digestible dal and something soup like things. I hope the PPT is visible to everyone. Yes, it is visible. Okay. So as I told you before that today we will discuss about the physical detox. So today I will discuss only two kriyas. First is Laghu Shang Prachalan and second is I will discuss about Vaman Dhoti that we did morning. So what is Shuddhi Kriya and why we need this Shuddhi Kriya? Shuddhi means Roshan ji, second slide पे जाइए. Yes. So in yoga we have 6 cleansing techniques mentioned in yogic text. Those who have issue in जिनका वात पित्त और कफ imbalance होता है, if they feel that many toxin deposit in their body, they can do this 6 kriyas. Okay,
Shat means 6 and Kriya means the cleansing process. All these Kriyas not only affect on your physical body, it's affect on your mental and pranic. It removes your mental and pranic blockages also. Okay. Next. So ये जो 6 practices हैं, इनके नाम है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ. कपालभाति, नेति, नौली, त्राटक, धौती और बस्ती. तो कपालभाति, as you all know, that is a breathing technique. It's come under cleansing technique also. नेति हमने किया था, I think day after before we did नेति, जल नेति. इसमें एक नेजल पॉट होता है, उससे हम लोग वाटर से, हॉट वाटर में सॉल्ट ऐड करके हम लोग क्लीन करते हैं जो अपने जो नॉस्ट्रल रीजन है उसको. नौली में हम लोग करते हैं कि एक नौली का एब्डोमेन का मसल्स को मसाज करने के लिए एक टेक्निक है, वो भी हो सकता है लास्ट में हम लोग आपको एक बार शो कर देंगे. और त्राटक में हम लोग किसी भी जो ल्यूमिनस चीज है या कैंडल फ्लेम के ऊपर हम लोग यूज करते हैं. आपको मैं फिर बाद में इसके बेनिफिट्स भी आई विल शो यू. धोती मीन्स जब हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को, धोती बेसिकली और भी टाइप की होती है, लेकिन जो हट प्रदीपिका पे मेंशन है वो यहाँ पे मैं आपको 2 ही तरह की धोती के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो फर्स्ट इज कुंजल और वी कैन कॉल इट वमन धोती, एंड सेकेंड इज लघु शंख प्रक्षालन. And basti is, you can say that is anima. Next. So we will discuss on Laghu Shank Prachalan, as in first day we all did Laghu Shank Prachalan process if you attended properly. So what we did in Laghu Shank Prachalan, why we call it Laghu Shank Prachalan? Laghu means small. It's a not full process, it's a small process. Or shankha means conch shell, because our alimentary canal, as you seen in this picture, this is our alimentary canal, this is our mouth. You can see in this picture, this is our mouth, and ये आपका जो है वो digestive tract है, जिससे आप जो फूड लेते हैं. और ये देखिए ये आपका स्टमक है, और आगे का जो पोर्शन है ये हमारा पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, और अंदर की तरफ इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. तो ये पूरा और एनस तक, तो ये लगभग आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, और यू कैन से इट इन GIT ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. तो ये कहीं ना कहीं शंख की तरह का होता है, इसलिए इसको जो नाम है इसको शंख प्रक्षालन कहा गया, जिसमें हम माउथ टू एनस अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है, GI ट्रैक है, उसकी हम सफाई करते हैं. नेक्स्ट. नाउ अगर आपको याद होगा तो हमने इस पूरे प्रोसेस में हमने जो वाटर लिया था, हमने ल्यूकवार्म वाटर लिया था with some salt, 1 and 1.5 teaspoon of salt, and we also add some lemon in this water. So what we did, why we use this salt, हम जो पानी हम यूज करते हैं उसमें हम salt और lemon को क्यों यूज करते हैं, this is the question. So जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, लेमन की क्वालिटी होती है कि वो जो जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है, वो सफाई का काम करता है. लेडीज को पता है कि कभी कभी उनके जब वो यूटेंसिल्स को वॉश करती हैं तो वो लेमन यूज करती हैं, क्योंकि वो क्लीनिंग के काम आता है, वो बहुत अच्छे से आपकी जो है जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है. तो हम लोग इसमें हाफ लेमन भी यूज करते हैं वाटर में. सॉल्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर आप विदाउट सॉल्ट आप वाटर अगर आप लेते हैं तो क्या होता है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये सॉल्ट को जो सॉल्यूशन है वो ऐसा होता है, वो आइसोटोनिक होता है. आइसोटोनिक का मतलब होता है कि वो आपके ब्लड के साथ वो मैच करता है, जिससे क्या होगा कि आप जो सॉल्ट वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी. सॉल्ट से क्या होता है कि जितने भी टॉक्सिन है वो डिसॉल्व होकर के
एनएस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग 5 आसन करते हैं। जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि किस तरह से हम लोग 2 ग्लास वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं स्वेटिंग पोज में बैठ करके, और हम लोग 5 आसन करते हैं। तो फर्स्ट आसन इज तड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंग आसन, नेक्स्ट लास्ट वन इज उदर कर्षणासन। तो हम इन 5 आसनों को क्यों हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, उसके पीछे रीजन है। देखिए, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आप देखिए, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कलान अभी मैंने शो की थी, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक का जो सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव जो आपका ट्रैक है, वहां पे कुछ वाल्व होते हैं। जब आप फूड इनटेक करते हैं तो वो अलग अलग जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहां पे उनको लॉक, वाल्व को आप दरवाजे की तरह मानिए कि वो जो है सिस्टम को, वहां पे जो ऑर्गन है उसको लॉक। रोशन जी, एक बार मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रीवियस जो वो थी पीपीटी, उसको शो कर दीजिए। देखिए, मेरा कर्सर जहां पे जा रहा है आप देखिएगा। देखिए, यहाँ से माउथ से हमने खाना लिया, और हमने जब खाना खाते हैं, ये जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं हमारा स्टमक। ठीक है, हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको पेट एब्डोमेन बोल देते हैं, या स्टमक इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हो। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपका ये वाला जो भाग है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। और यहाँ पे एक लॉक होता है जिसको वाल्व बोलते हैं। वाल्व मतलब दरवाजा। तो जब आप फूड इनटेक करते हैं, ये फूड जो है स्टमक में आपके 3 से 4 घंटे रहता है डाइजेशन के लिए। दूसरा जो लॉक, जो वाल्व आता है यहाँ पर, जब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कनेक्ट होता है तो वहां पे भी एक लॉक लगता है। तो दोनों तरफ से स्टमक के जो फर्स्ट पोर्शन है और जो लास्ट पोर्शन है, वहां पे दोनों तरफ वॉल्व होते हैं। आगे भी वॉल्व होते हैं, मैं बाद में फिर आपको बताऊंगी। तो वो वहां पे लॉक हो जाते हैं, जिससे फूड जो है वो आगे नहीं जाता है, ताकि उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो सके। ठीक, नेक्स्ट। सो ये जब हम आसन, हमने 2 ग्लास, अगर आपको याद होगा तो हमने 2 ग्लास पानी लिया था स्वेटिंग पोज में, सॉल्ट वाटर विद सम लेमन। और हमने फर्स्ट आसन किया था 5 राउंड में ताड़ासन। ताड़ासन का पिक्चर यहाँ पे प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है, पर इसमें जो है पूरी बॉडी को जो है ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करते हैं, और आपकी जो बॉडी है वो आपके टोज के ऊपर बैलेंस होती है, बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इस आसन से क्या होता है कि जब आप वाटर इनटेक करते हैं, जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो मैंने फर्स्ट वाल्व शो किया, जो आपकी ईसोफेगस और स्टमक, जहां से आपका स्टमक स्टार्ट होता है और ईसोफेगस के बीच में एक वाल्व होता है, उसको वो खोलता है। ठीक है, वो क्यों खोलता है? ताकि जो वाटर है वो बहुत स्पीड के साथ पूरे सिस्टम में चला जाए और वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब ना कर सके। नेक्स्ट जो हम आसन करते हैं वो है आपका तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आप करते हैं, आप साइडवर्ड जो है वो बेंड करते हैं। वो साइडवर्ड जब आप बेंड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल है, जो कि कॉइल्ड है ना, जो आपने देखा होगा, मैंने आपको शो किया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो वाटर को नीचे की तरफ भेजती है। नेक्स्ट है आपका कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में भी आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में भी एक वॉल्व, एक दरवाजा होता है, जिसको इलियोसिकल स्फिंक्टर मसल्स वहां पे होती है, ये वॉल्व होता है, ये दरवाजा होता है, उसको ये ओपन करता है जब आप इस तरह से ये वाला जो थर्ड पोज है आप जब करते हैं, और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे सलाइन जो वाटर है, जो सॉल्टी वाटर है, वो जल्दी से जो है इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन इज त्रियक भुजंग आसन, जिसमें हम राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ट्विस्ट करते हैं। ये भी आपके जो है जितने भी वाल्व हैं उसको ओपन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उदरा कर्सन आसन। तो इसमें भी हम स्वेटिंग पोज में बैठ करके अपनी जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको कहीं ना कहीं प्रेशर करते हैं, ताकि जो वाटर है वो जो जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड, जो स्टेगनेंट एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है, उसको अपने साथ लेकर के बाहर की तरफ वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाए। नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने सॉल्ट वाटर
जो हमने यूज किया उसमें क्या हम बिना आसन के भी उनको कर सकते थे, हम सिर्फ सॉल्ट वाटर ले लें और पानी जो है वो एज इट इज निकल जाए? तो इसके आंसर के लिए कि अगर आपको अपनी जो जो स्टेगनेंट टॉक्सिन्स हैं, जिनको आप बहुत काफी साल से, देखिए जो टॉक्सिन्स हैं वो जिन लोगों ने संघ प्रक्षालन किया होगा वो समझ पा रहे होंगे कि इवन आप मॉर्निंग में फ्रेश भी हुए थे, उसके बाद आपने संघ प्रक्षालन का प्रैक्टिस किया था, बट आपने फील किया होगा कि उसके बाद भी बहुत सारा जो टॉक्सिन्स था वो निकला, लगभग 4-5 बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। इट मीन्स कि वहां पे बहुत सारा जो स्टेगनेंट टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेटेड था, जो कि आसन के करने से वो जो है प्रॉपरली क्लीन होता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो लास्ट में पानी निकलता है वो लगभग व्हाइट टिश्यू ही होता है, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म किया था, हमने पूर्ण लघु शंख प्रक्षालन नहीं किया था, तो वो थोड़ा सा लाइट येलोइश कलर का होता है। लेकिन अगर आप फुल करते हैं शंख प्रक्षालन तो उसमें क्या होता है कि पूरा जो वाटर है आपका वो एकदम व्हाइट, जैसा आप ड्रिंक करते हैं सेम जो है वाटर जो है वो व्हाइट कलर का आपका निकलता है, और पूरे जो टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो लघु शंख प्रक्षालन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों करना चाहिए लघु शंख प्रक्षालन? ओके, इसके बेनिफिट्स में क्या होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, देखिए हम अपनी बॉडी को बाहर से तो क्लीन करते हैं, हम डेली बात करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम हेयर वॉश करते हैं ना, आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, लेकिन इंटरनली आप अपने ऑर्गन्स को क्लीन नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम क्लीन करते हैं, और अपनी जो ऑर्गन्स है उनको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, वहाँ के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, आपका ब्लड के जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते हैं और ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। और जो कुछ अमाउंट में जो म्यूकस है आपका, जिससे जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो चिपके रहते हैं, तो वो भी वहां से रिमूव होता है। जो बैड जो एक्सेस अमाउंट में म्यूकस वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है वो भी वहां से रिमूव होता है, तो ब्लड को प्योरीफाई करता है। जब आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है या आपके ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो जितनी भी तरह की एलर्जीज है या स्किन डिजीज है उसमें ये हेल्पफुल है। कंस्टिपेशन में आपने डायरेक्टली फील किया होगा कि आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह से एकदम क्लीन हो जाता है। कंस्टिपेशन की अगर किसी को इश्यू है तो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। ओके, जो आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, किसी भी तरह की जो आपके पेट में कभी दर्द हो रहा है, इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स है, उसको भी ये कहीं ना कहीं खत्म करता है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐड है कि रिलीफ फॉर एंजाइटी। आप पूछ सकते हैं कि जिन लोगों ने मतलब इस प्रैक्टिस को किया होगा, दे फील वेरी लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और मे बी यू फील स्लीपी। इसको करने के बाद काफी हम लोग के पास कॉल आए थे कि बहुत नींद आ रही है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत लाइट फील हो रही है। इवन आप फील करेंगे कि बहुत थॉट लेवल पे भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा द फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स इज वेरी वेरी लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है ये केवल आपको फिजिकल बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा है, ये मेंटली भी आपको रिलैक्स करता है, मेंटली भी डिटॉक्स करता है। और प्राण के लेवल पे जिन आपकी नाड़ीज जो जिनमें प्राणा फ्लो होता है, तो नाड़ीज पे आपकी प्योरीफाई होती है, तो एनर्जी लेवल आपका बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और पूरा ओवरऑल मान के चलिए कि आपकी बॉडी जो है वो रिजुनवेट हो जाती है। थैंक यू सो मच। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, देखिए वैसे तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करना चाहिए, और अगर आप इसके बाद भी कभी इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं, तो आप 1 मंथ के अंदर इसको दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप किसी योगा एक्सपर्ट के साथ ही कीजिए, 1-2 बार इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जब ट्रेन हो जाते हैं तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। जो 15 ईयर से जिनकी एज कम है बच्चों की, उनको ये प्रैक्टिसेस नहीं करानी चाहिए, और जिनका बीपी लो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, और अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो मतलब अल्सर है, इस तरह की कोई भी आपका ऑपरेशन हुआ है, तो
इस पूरे प्रोसेस को आप अवॉइड कीजिए। हाई बीपी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो विदाउट सॉल्ट आप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है या तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए इस प्रैक्टिसेस को, जिनका किडनी के कुछ इश्यूज हैं, जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि होता क्या है कि कई बार सपोज आपका जो वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो वो यूरिन के थ्रू आपका जो वाटर है वो बाहर आता है। ऐसे में क्या होता है कि जो किडनी का वर्क है वो वर्कलोड बढ़ जाता है, और अगर किसी को ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लोग अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिनको प्रेगनेंसी है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, और जो अगर आपको उस वक्त मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो उस पर्टिकुलर टाइम में इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट रोशन जी, नेक्स्ट। लघु शंख प्रक्षालन करने के बाद, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो आसन है 5 आसन के भी आप 5 या 8 राउंड आप प्रैक्टिस करते हैं, और आप 4 से 5 बार आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को जो एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए शवासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहे। और स्लीपिंग को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 3 घंटा आप स्लीपिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करना बंद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या है, आपकी पूरी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। तो सोने से क्या होता है कि आपका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि आप 3-4 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, शवासन कर लीजिए। और कम से कम ये जो मूंग दाल खिचड़ी को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, उसमें आप देसी घी ऐड करके, क्योंकि जब आप सॉल्ट वाटर इनटेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी म्यूकस की जो लेयर है, ठीक है, एक्सेस म्यूकस जो है वो रिमूव होता है टॉक्सिन्स के साथ, लेकिन न्यू जो म्यूकस है वो बनना भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो म्यूकस भी जरूरी है बॉडी के लिए। तो उसको दोबारा से बनाने के लिए हम मूंग दाल की खिचड़ी एकदम पतली, उसमें बहुत सारा घी डाल करके हम इसको यूज करते हैं। आप अप्रोक्स 1 आवर के बाद, इस क्रिया को करने के 1 घंटे के बाद आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। और पूरे दिन में आपको मिल्क या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। होल डे आप कोशिश कीजिए कि कोई भी सात्विक सिंपल जो which have less spices, इस तरह का फूड आप लीजिए। और जब आप फर्स्ट मील लेते हैं, खिचड़ी आप लेते हैं, तो उसके 6-7 घंटे के बाद आप कुछ भी इस तरह का हल्का एकदम सात्विक फूड आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी हल्का सूप ले सकते हैं, या दाल, या दोबारा से आप खिचड़ी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लघु शंख प्रक्षालन। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज वमन धोती। मैम, मेरे 1-2 प्रश्न हैं, तो वो अभी पूछें या बाद में? आप अभी पूछ लीजिए, अगर लघु शंख प्रक्षालन से रिलेटेड है, यू कैन आस्क नाउ। जी हाँ जी, सिद्धार्थ जी। जी हाँ जी, नमस्कार। आज रोशन जी से भी इसी बारे में थोड़ी बात हुई थी। एक्चुअली थोड़ा इसी को फॉलो करते हैं तो एक यही चीज पता चली थी कि सुबह उठ के गर्म थोड़ा पानी पीना, वार्म ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, 2 से 3 गिलास जितना भी पी सकते हैं। तो उसी को मैंने इससे थोड़ा सा अगर मैं कनेक्ट करूँ लघु शंख प्रक्षालन से, तो इसमें भी वही चीज है, सॉल्ट वाटर के साथ बट विद आसन। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि डेली इसको फिर क्यों ना करें, अगर ये हेल्पफुल है फॉर मोशन, और अगर हम कर सकते हैं, अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं और जितने भी सारे अवॉइडेबल इश्यूज हैं अगर वो नहीं हैं, तो कांट वी डू इट डेली? No, 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 no. You should avoid it daily. You should do it in once in a month. क्या होगा अगर आप देखिए, बॉडी को अपना वर्क खुद से करने दीजिए, ठीक है। आप उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं कीजिए कि वो अपना काम ही करना भूल जाए। ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि आप डेली जो सॉल्ट वाटर ले रहे हैं, लेमन आप यूज कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि म्यूकस जो है वो आपका बॉडी से रिमूव होगा। म्यूकस भी जरूरी है, ओके। ये आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, ओके। अगर म्यूकस की जो एक्सेस अमाउंट है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज आपको हो सकती हैं, बॉडी में रफनेस आ जाएगी, डिजीज हो जाएगी। सो डेली नहीं करना है, और बॉडी को अपना फंक्शन खुद से करने दीजिए। उसका काम है डिटॉक्स करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि
हमारे पास ऑर्गन है उसको टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। हाँ, जब आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाए तब आप उसको सपोर्ट कर दीजिए। ओके, बाकी आप बट नॉर्मल गर्म वाटर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मना नहीं। अगर आपको सूट करता है बिल्कुल आप गर्म पानी तो सुबह उठ के लेने ही चाहिए, क्योंकि जब आप स्लीप में होते हैं आप वाटर इनटेक नहीं करते और बॉडी से जो है बहुत ज्यादा जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है होल नाइट। तो बेटर है कि मॉर्निंग उठ करके आप इवन आप बिना ब्रश किए अगर लेते हैं, रात में ब्रश करके सोइए और सुबह जो है विदाउट ब्रश अगर आप वाटर इनटेक करते हैं तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। तो उसमें कुछ हनी लेमन भी मिलाएं या खाली पानी गरम? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या आपको सूट करता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे लेमन, जैसे सब लोग बोलते हैं कि लेमन लेना चाहिए, मुझे लेमन बिल्कुल सूट नहीं करता है। ओके, आप वीट ग्रास ले सकते हैं, उसमें वाटर जो वीट ग्रास का जूस होता है, कुछ लोग जो व्हाइट पंपकिन है वो भी लेते हैं, या आपको शायद जो भी आपको, देखिए आपके अकॉर्डिंग आप चीजें यूज कीजिए। कि आप आजकल होता क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज अच्छी है और हम लोग उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं। इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो चीजें आप कीजिए। हाँ, पानी जरूर लीजिए, क्योंकि आपका 70% बॉडी तो वाटर से ही बना है, तो वाटर इनटेक तो होना ही चाहिए जी। ठीक, थैंक यू, थैंक्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप को किसी को भी अगर इससे रिलेटेड जो मैंने लघु शंख प्रक्षालन का जो प्रोसेस बताया उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम लोग अभी इसको कवर कर लेते हैं, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके रोशन जी, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, वमन वाला जिसमें था। थोड़ा सा पिक्चर देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इट्स अ वेरी हेल्पफुल प्रैक्टिस फॉर क्लींजिंग फॉर अपर ट्रैक। ये जो है स्टमक से लेकर के ऊपर तक का जो आपका ट्रैक है, जो आपका स्टमक से लेकर के ऊपर का जितना भी ट्रैक है उसकी क्लींजिंग करता है। तो उसमें आज हम लोगों ने सुबह, आप लोगों की वीडियोस ऑन थी तो पता नहीं चला किसने किया या नहीं किया, बट इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। और जिन लोगों को, चलिए मैं बेनिफिट बाद में बताती हूँ। ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है आपके। जैसे हमने लघु शंख प्रक्षालन में देखा कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करता है और आपके जितने भी ऑर्गन है उससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उनको वो सपोर्ट करता है। तो वमन जो क्रिया है ये आपके जो अपर ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, उसको क्लीन करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट रोशन जी। यस, तो इसमें मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा, आई थिंक राकेश जी जो योगा एक्सपर्ट है उन्होंने इसको डेमो किया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें स्वेटिंग पोज में आपको 4 से 5 ग्लास पानी पीना होता है, ल्यूकवार्म वाटर, और नमक कुछ क्वांटिटी में इसमें ऐड किया जाता है। नमक जैसे मैंने अपनी प्रीवियस इसमें प्रैक्टिस में आपको बताया कि नमक हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो जितना भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर सके बॉडी से। तो जब हम स्वेटिंग पोज में इस वाटर को ड्रिंक करते हैं और थोड़ा सा स्पीड जल्दी जल्दी हम इस पानी को लेते हैं, ताकि ये पानी जो है बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, और इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो सॉफ्ट पैलेट है, आप टंग को ऊपर लगाइए, हार्ड पैलेट आपको शो होगा, उसके पीछे जो सॉफ्ट पैलेट है उसको हम टिंकलिंग करते हैं वहां पे। तो जब हम टिंकलिंग करते हैं, वहां पे टच करते हैं, तो हमारी जो लोअर ब्रेन है, इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा उसका नाम है, वहां पे एक सेंटर होता है जिसको वोमिटिंग सेंटर बोलते हैं, जो कि जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो वॉमिटिंग कभी कभी हम लोगों को हो जाती है ड्यू टू इनडाइजेशन, हम लोग कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे हमें वॉमिटिंग आ जाती है, तो उसके लिए वो जो है प्रोसेस बॉडी खुद से उसकी क्लीनिंग, बॉडी की क्लीनिंग करती है। लेकिन यहाँ पे हम वॉलेंटरी, हम अपनी अपनी चॉइस से हम लोग वॉमिट कर रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उस वो जो सेंटर है, जो वॉमिटिंग सेंटर है, वहां पे उसको स्टिमुलेट करना होगा। ओके, और जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो होता क्या है, देखिए एक ये मैं कर्सर लेकर के जा रही हूँ यहाँ पे हमारे लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स है। राइट और लेफ्ट लंग के बीच में यहाँ पे पूरा हमारा एब्डोमेन वाला एरिया, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो शो हो रहा है कर्सर में मैं शो कर रही हूँ, ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, एक थिक मसल्स की लेयर होती है आपके लंग्स और आपके एब्डोमिनल रीजन के बीच में, ठीक।
तो जब आप अपने वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं तो वो वेगस नर्व के थ्रू एक नर्व होती है जो कि आपके इंटेस्टाइन और आपके लंग्स और हार्ट से रिलेटेड से जुड़ी होती है, वो वहां पे स्टिमुलेशन भेजती है, उसको स्टिमुलेट करती है और एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ प्रेस होता है और स्टमक को प्रेस करता है, और नीचे से जो एब्डोमेन की मसल्स है, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स होती है, वो भी स्टमक को प्रेस करती है। तो जब ऊपर से आपका डायफ्राम और नीचे से आपके एब्डोमिनल मसल्स क्या होती हैं कि जब वो प्रेस करती हैं आपकी ये जो स्टमक वाला एरिया इसको प्रेस करती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जो दरवाजा है, ये जो वॉल है, इसको बोलते हैं कार्डियक वॉल, ये जो है ओपन हो जाता है, और जो आपका वेस्ट है, जो भी आपने जो भी आपके इसमें स्टमक में वेस्ट डिपॉजिट होता है, इधर इन म्यूकस होता है वहां पे, या जो एसिडिटी होती है जिन लोगों को, वो सब चीजें जो है वो वहां से फ्लश आउट होती हैं और मुंह के थ्रू हम लोग उसको फ्लो के साथ बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसमें एक चीज और होती है कि हमारा वॉमिटिंग से पहले जो हमारा ग्लोटिस है, आपको हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें जो है बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो एक ट्यूब जाती है जिससे जब आप बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वहां पे फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो वोमिटिंग से पहले सिस्टम, बॉडी का सिस्टम देखिए किस तरह से आपको सपोर्ट करता है कि वो ग्लोटिस वाले एरिया को बंद कर देता है, ताकि, क्योंकि आप बहुत फ्लो के साथ वॉमिट आउट कर रहे हैं, ताकि वो जो वाटर है वो लंग्स में ना चला जाए, इट विल हार्म्स यू अ लॉट। ओके, तो वो बॉडी खुद से करती है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस को आपको बहुत रिलैक्स वे में करना है। मैंने बहुत अपने जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे या जो पार्टिसिपेंट्स कभी कभी हम लोग कराते हैं, जब उनको ऑफलाइन कराते हैं, तो कभी वो, क्योंकि वो देखने में इतना ऑकवर्ड सा लगता है, तो वो लोग बहुत टेंस हो जाते हैं, और वो बहुत टेंस होने से क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेस हो जाती है और आप वाटर जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो जितने भी प्रोसेस, जितने भी क्लिनजिंग के प्रोसेस हैं, उनको बहुत रिलैक्स होकर के ये सोच करके कीजिए कि आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं कि कैसे हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली जिन लोगों को कफ और वात या जो पित्त की प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ की जो भी इश्यूज होते हैं, उनको ये रिमूव करता है और इनके अंदर बैलेंस लाता है। तो बेसिकली ये जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं या जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है। अस्थमेटिक पेशेंट्स को तो हम लोग देते ही देते हैं। हाँ, जो जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो हम लोग या तो बहुत कम रखते हैं, या फिर कभी कभी जब वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो विदाउट सॉल्ट भी आप इसको कर सकते हैं। लघु श्वसन प्रक्षालन को आप विदाउट सॉल्ट कभी नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ, वमन क्रिया को आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो जब आपका डायफ्राम, मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपके जो थोरैसिक, मतलब आपका जो लंग्स वाला रीजन है और जो आपका एब्डोमेन वाला रीजन है, वहां पे बीच में एक जो मसल्स की लेयर होती है, जब वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो नीचे आपकी राइट साइड में लीवर वाला पार्ट है, और जब आप लीवर को मसाज करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब आपकी क्लीनिंग होती है तो आपके और जब आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, और जब डायफ्राम इस तरह से स्क्वीज करता है, और भी क्योंकि स्टमक के पीछे आपके पैनक्रियाज है, लीवर वाला, स्प्लीन वाला पार्ट है, तो ये ओवरऑल जो है डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए भी, और जिन लोगों को कंस्टिपेशन होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्यूरिफाई करता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसके से रिलेटेड, और मे बी इससे रिलेटेड काफी रिसर्चेस भी इसके ऊपर हुए होंगे, जिसमें जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है या एंजाइटी, या जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और कभी कभी हम सभी को हो जाता है, तो उन लोगों को ये प्रैक्टिस जब आप कराते हो तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो लोग डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं वो किसी के साथ शेयर, अपनी जो इमोशंस हैं वो बेसिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उनके जो
जब आप वॉमिट आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं या इमोशंस को कहीं ना, या प्राणिक जो ब्लॉकेजेस हैं उसको भी ये ओपन करता है, और ये बहुत इफेक्टिव है। रियली आप कभी किसी को इस तरह की, भगवान न करे ना हो प्रॉब्लम, पर अगर होता है तो आप ट्राई कीजिए, ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट। ओके, कुछ प्रिकॉशंस हैं इसको करने के लिए भी। जैसे आप इस प्रोसेस को एम्प्टी स्टमक ही कीजिए मॉर्निंग में, तो ये ज्यादा अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। और जो आपको वाटर है वो बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए। और आप स्टैंडिंग पोज में वाटर कभी ना ड्रिंक करें, क्योंकि बॉडी इसको फिर एब्जॉर्ब करेगी और आप वॉमिट आउट नहीं कर पाएंगे। और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत जेंटली, बहुत रिलैक्स माइंड से इसको कीजिए। और नेक्स्ट है कि जब भी आप वमन प्रोसेस की जो क्रिया है इसको आप करते हैं, तो उसके 2 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाइए। और 2 घंटे के बाद जब आप खाते हैं तो बहुत ही सात्विक फूड लीजिए, सिंपल, विदाउट टू मच सॉल्ट एंड टू मच स्पाइसेस। सिंपल फूड लीजिए, कॉफी और टी को अवॉइड कीजिए। इमिजिएटली जब आप वमन करते हैं तो इमिजिएटली बाथ भी नहीं लीजिए, थोड़ा सा रुक करके, बॉडी का टेम्परेचर, थोड़ा सा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा रुक करके इसको बात ले सकते हैं आप। 1-2 घंटे के बाद आप इसको बात ले सकते हैं। ये वीक में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ के इश्यूज हैं या बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो कभी कभी डेली भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस और देख लेते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है हाल फिलहाल में, उनको भी अवॉइड नहीं करनी। छोटे बच्चों को नहीं कराना चाहिए, और जिनको हार्ट अटैक का इश्यूज हुआ है पास में कभी, या हार्ट की कोई सर्जरी है, उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप बहुत वीक हैं तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन में नहीं करना चाहिए। हाई बीपी के जो पेशेंट्स है वो कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, विदाउट सॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आपको इस तरह की कोई भी इश्यूज है तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही इसको कीजिए। अब मैं क्वेश्चंस को इनवाइट करना चाहूंगी। अगर आपके इन दोनों ही क्रियाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्री होकर के पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके, सो अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, और हम लोग 15 to 20 मिनट एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन साथ में करेंगे। आई होप यू ऑल विल एंजॉय विद दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए रोशन जी, चलिए। चलिए मैं आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराती हूँ। आप लोग हिंदी में करना चाहेंगे या इंग्लिश में करना चाहेंगे? एक बार मुझे थोड़ा सा। हिंदी बेटर है अगर सबको कन्वीनियंट हो तो। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग ध्यान के किसी भी आसन में आप बैठिए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए। ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में आप रख सकते हैं। कमर गर्दन एकदम सीधी एक लाइन में। पैरों की पोजीशन आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन और किसी भी पोज में आप बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली 15 to 20 मिनट आप बैठ सकें।
धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने पूरे शरीर को बहुत ध्यान से देखिए। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर के मसल्स को एकदम रिलैक्स कीजिए। चेहरे की मसल्स को रिलैक्स कीजिए। जब आपको लगे कि आपका पूरा शरीर एकदम स्थिर है, आपके शरीर में कहीं पर भी कोई हलचल नहीं हो रही है, आपका शरीर शांत, स्थिर, पूरे शरीर को एक साथ देखिए। अपनी शरीर की स्थिति को पूरी तरह से देखिए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस पर, अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर फोकस कीजिए। सांसों की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस सांसों को दृष्टा भाव से देखिए। आप किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से सांस को छोड़ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास प्रश्वास पर है। अब धीरे से अपनी श्वास को देखिए कि आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को ऊपर की तरफ ले रहे हैं और आपकी सांस आपके आईब्रो सेंटर और आपके आगे चक्र पे जाके मिल रही है। कुछ देर के लिए सांस को आईब्रो सेंटर पे होल्ड कीजिए और धीरे से सांस को जब छोड़ेंगे तो सांस आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ जाएगी। इस तरह से सांस का एक ट्रायंगल बनाइए। जब आप एक बार फिर से इनहेल करेंगे, सांस लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए, दोनों सांस को लीजिए और दोनों नॉस्ट्रिल की सांस को आप मिलाइए आईब्रो सेंटर पे। कुछ सेकंड के लिए वहां पे होल्ड कीजिए ब्रेथ को। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो सांस आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ आ रही है। मेक अ ट्रायंगल। Again, inhale through both the nostril. Your breath goes upward direction. Merge your breath in your eyebrow center. Make a triangle. Make a breath triangle. Pause for some time and then exhale. इस पूरे प्रोसेस को 5 टाइम कीजिए। बहुत ध्यान से अपनी सांस को देखिए। आपकी सांस केवल आपके नॉस्ट्रिल तक से लेकर के आपके आईब्रो सेंटर तक ही जाएगी। जब आप सांस छोड़ें तो केवल नॉस्ट्रिल तक ही बाहर आ रही है आपकी सांस।
अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, पूरा ध्यान आपकी सांस पर श्वास पर। अब धीरे से लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, आईब्रो सेंटर तक जाइए। आईब्रो सेंटर से विजुलाइज कीजिए कि आप अपनी हेड के अंदर एंटर कर रहे हैं। अपने हेड के अंदर एंटर कीजिए। आपका हेड वाला जो भाग है उसको चिदाकाश कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका चिदाकाश वाला भाग अंदर से एकदम खाली है। आप अपने चिदाकाश वाले भाग में बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप अपनी चिदाकाश, आपका हेड वाला जो भाग है उसको एम्प्टी कीजिए अंदर से, एकदम खाली। वहां पर आकाश है, वहां पर कुछ नहीं है। विजुलाइज कीजिए कि आप अपने चिदाकाश में सेंटर में बैठे हैं। आपके राइट साइड में चिदाकाश की दीवार है, आपके लेफ्ट साइड में चिदाकाश की दीवार है। आपके सामने, ठीक आपके आंखों के सामने, आईज क्लोज रहेंगी, बंद आंखों से देखिए, आपका आज्ञा चक्र, आपका आईब्रो सेंटर है। चिदाकाश में बीच में बैठिए, बहुत ध्यान से देखिए आईब्रो सेंटर के बीच में। पूरे चिदाकाश को देखिए। अगर आपको वहां पर कोई कलर महसूस हो रहा है, उस कलर को देखने की कोशिश कीजिए। आप एक कल्पना करेंगे, आप अपने चिदाकाश में सेंटर में बैठे हैं और आपके आंखों के ठीक सामने, आपके ठीक सामने आईब्रो सेंटर है। उस आईब्रो सेंटर या आज्ञा का जो क्षेत्र है, वहां पर एक ब्लैक बोर्ड की कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वहां पर आईब्रो सेंटर पर एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक कलर का। अपनी कल्पना को और गहरा कीजिए। अब हम इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ कलरफुल चॉक से लेकर जो भी मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूं वहां पे लिखेंगे। व्हाइट कलर का चॉक लीजिए और अपना फुल नाम, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहे, फुल नाम आप लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में। इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, you can use capital letters. व्हाइट कलर की चॉक से अपना नाम लिखिए। बहुत ध्यान से अपने नाम को देखिए, उसके कलर को देखिए। अब एक येलो कलर की चॉक लीजिए। सेकेंड लाइन में आपको 1 से लेकर के 10 तक नंबर लिखना है। मैं नंबर काउंट करूंगी, आप लिखते जाइए। येलो कलर की चॉक, चलिए लिखते हैं। सेकेंड लाइन में आ जाइए, लिखिए नंबर 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7, कॉमा 8, कॉमा 9, कॉमा 10। अब एक ऑरेंज कलर की चॉक लीजिए। जहां पे आपने 1 to 10 नंबर लिखे हैं, उसके ठीक नीचे
सर्किल बनाइए। ऑरेंज कलर की चौक से सर्किल बनाइए। नंबर 1 के नीचे सर्किल बनाइए, 2 के नीचे सर्किल बनाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपने थर्ड रो कंप्लीट की। अब रेड कलर की चौक लीजिए। रेड कलर की चौक से सर्किल के ठीक नीचे स्क्वायर बनाइए। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10th square. Now come to the next line. Again use a yellow chalk. स्क्वायर के ठीक नीचे एक ट्रायंगल बनाइए। फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ ट्रायंगल, सिक्स्थ, सेवेंथ ट्रायंगल, एट्थ ट्रायंगल, नाइन्थ ट्रायंगल, 10th ट्रायंगल। अब इस पूरे ब्लैक बोर्ड को एक साथ देखिए। बहुत ध्यान से देखिए। अलग अलग कलर्स को, अलग अलग शेप्स को, सीक्वेंस को देखिए। फर्स्ट आपका नाम, नंबर्स, थर्ड में आपने सर्किल बनाया था, फोर्थ स्क्वायर्स, कलर्स के साथ देखिए, लास्ट ट्रायंगल। ओके, अब इस पूरे ब्लैक बोर्ड को वाइप ऑफ कर दीजिए, साफ कर दीजिए। जो भी आपने लिखा है पूरे ब्लैक बोर्ड को साफ कर दीजिए। Now again focus on your चिदाकाश। चिदाकाश में देखिए, पूरे चिदाकाश में घूमिए। चेक कीजिए क्या आपको वहां पे रोटेशन दीजिए। चिदाकाश में रोटेशन कीजिए। चिदाकाश की जो वॉल है उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए। रोटेट कीजिए अपनी अवेयरनेस को। 1 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन, सेकेंड टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए। अगर आपको वहां पे कोई भी कलर या आपके चिदाकाश में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, उनको फील कीजिए। बहुत ध्यान से पूरे चिदाकाश को देखिए। Okay, now slowly focus on your breath. अपनी सांस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपने पूरे शरीर के साथ को देखिए। अपने पूरे शरीर को फील कीजिए। अब धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को तेजी से रब कीजिए। दोनों आंखों के ऊपर हथेली को रखिए। हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे से खोल दीजिए और धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आइए।
Thank you so much for attending this session. I hope you all enjoy this session. Okay, Roshan ji. First of all, thank you so much, ma'am, for giving your time and sharing the beautiful PPT and sharing the the beautiful technique of this meditation. इतना सुंदर ध्यान Thank you, Roshan. और आज का जो आपने मेडिटेशन के ऊपर जो लेक्चर लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रश्न भी बीच में कुछ लिए, और अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी किसी का प्रश्न है तो हम एक बार ले लेते हैं। मुझे लग रहा है शायद एक लोगों से प्रश्न है। तो सभी लोग जुड़े रहे, उन सभी का भी धन्यवाद। आई होप कि षट कर्मास हम कर तो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो साइंस काम कर रहा होता है उसको आज काफी हद तक आप समझ पाए होंगे। और इसके अलावा भी कोई मन मस्तिष्क में कोई अगर समस्या आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो सकता है कि अभी तक इतने दिन हम अभ्यास तो कर रहे थे लेकिन आप अभ्यास नहीं कर पाए, केवल अभ्यास को देख पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में कठिन अभ्यास जरूर है। तो कोई बात नहीं, टीम रतान्वेषी के आने वाले समय में हम ऑफलाइन प्रोग्राम होस्ट करें और आप सभी को ऑफलाइन एक जगह पर बुलाएं और इस सारी शुद्धि क्रिया आपको फेस टू फेस 2 वे कम्युनिकेशन के साथ हम कराएं। अभी भी हम 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज अ वर्चुअल कम्युनिकेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऑफलाइन प्रोग्राम एक छोटा सा डिजाइन किया जाए जिसमें कि आप इसको अभ्यास को नॉलेज हम ले पा रहे हैं, इसको और अपने वाइड लेवल पे हम दे पा रहे हैं। तो एक बार फिर से सबसे पहले तो मैम का धन्यवाद आपके सेशन के लिए और आप सभी का Thank you, everyone. Thank you so much. Okay.